गाइस आई होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा डिस्कशन टॉपिक है कोड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इट वाज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय इज़ अ रशियन पोइट एंड he is a caption as a novelist, short story writer, playwright, essayist. Because he is Russian poet, that's why his language is also Russian, and his career period is from 1847 to 1910. And in God Sees the Truth But Waits, there are three characters used. At first, Ivan Demtovich Aksinov, Ivan Demtovich Aksinov's wife, Makar. Who is Ivan Demtovich Aksinov? He is protagonist of this story. He is a young, handsome man, fond of singing, full of fun, and he is also merchant. And after that, second character is Ivan Demtovich Aksinov's wife. She is superstitious lady and embodied the potent emotional pull of families and of home. After that, Makar. Makar, who is Makar? Makar is a antagonist of the story. Makar's nickname is Simeonich. That's why Makar Simeonich is a cold-blooded murderer. He is murderer and antagonist in this story, and he is a cold-blooded murderer and scoundrel. Knowingly, he hides the blood-stained wife in a knife in Aksinov's bag. When he murdered a merchant, he hid his knife into the Aksinov's bags. That's why Aksinov accused murder, and he spent 26 years in prison. And tips the police. He don't confess the guilt of the day he met Aksinov. He meets Aksinov. Summary. Now I try to write a suitable summary for you. And summary: Ivan Demtovich Aksinov lived in Vladimir town. He was a young handsome man. Means when story start, his intro started. Ivan lived in Vladimir town. Vladimir is a town name where he is living. Where he lived, he was a young handsome man full of fun, curly hairs, and a merchant. He had 2 shops and 1 house. Before marriage, he used to drink and wasted most of his time. But after marriage, he came up the drink. But after marriage, he gave up the drinking and became a good man. यानी कि शादी के बाद वो एक अच्छा आदमी बन जाता है। शादी से पहले वो एक ड्रंकर है और मोस्ट ऑफ टाइम ये वेस्ट करता है। और वन डे ही प्लान्स टू गो टू निज़नी फेयर। ये एक निज़नी प्लेस है और यहाँ पे एक फेयर हो रहा है। यहाँ पे ये डिसाइड करता है जाने का, जाके अपनी जो इसके पास थिंग्स हैं उनको सेल आउट करने का प्लान करता है। हिज वाइफ टोल्ड हिम दैट ही हैज़ हैड अ नाइटमेयर अबाउट हिम। यानी कि वो एक उसके बारे में एक भयानक जो है ख्वाब देखती है। ही शी सैड, वो उसको बताती है दैट आई सॉ यू टर्न फ्रॉम द फेयर विद वाइट हेयर्स, कि तुम फेयर से लौटे हो लेकिन वाइट हेयर्स के साथ। ही लाफ्ड, वो ये सुनता है तो वो हंसना स्टार्ट करता है। उसे कहता है कि ये तो गुड लक का साइन है। ही ट्राई टू कन्विंस हिम, शी ट्राई टू कन्विंस हिम। वो उसे एग्री करने की कोशिश करते हैं कि वो ना जाए। मुझे ये अच्छे साइंस नहीं लग रहे कि उसका जो उसका नाइटमेयर है वो उसे सिक्स सेंस उसे कह रही है कि इसको ना जाने दे। बट वो अटल अपनी बात पे कि वो जाएगा। शी ट्राइज टू कन्विंस हिम टू स्टॉप, बट ही सैड इन टर्न आई विल ब्रिंग यू सम प्रेजेंट्स फ्रॉम द फेयर। अब वो उसे एक कहता है कि अगर मैं गया तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ से प्रेजेंट्स भी लेके आऊँगा। ये सुन के वो उसे इजाज़त दे देती है और वो ही सेड्स गुड बाय एंड ड्रूव अवे। When he had travelled halfway, he met a merchant, Rizyan, whom he knew. But they had spent the night together, and next day before dawn, Aksinov went on his journey. यानी कि next day, Aksinov again start his journey without seeing him. यानी कि अपने friend को देखे बगैर ही वो चला जाता है। He covered about 25 miles and stopped at another inn to rest his horses. Aksinov began playing his guitar on the porch. अभी उसने 25 माइल्स का सफ़र तय ही किया होता है कि एक्सिनॉव को
अपने हॉर्सेस को रेस्ट देने की गर्ज से वहाँ रुकता है और वो जो कि सिंगिंग का भी शौकीन होता है, इसलिए वो अपनी गिटार निकालता है पोर्च में और उसे बजाना शुरू करता है, प्ले करना शुरू कर देता है। मेन वाइल आ कैरेज वाज स्टॉप देयर एंड 2 पुलिस ऑफिशल्स केम टू हिम एंड आस्क क्वेश्चंस टू हिम वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट नाइट, यानी कि उसके पास आते हैं 2 पुलिस सोल्जर्स जब वो ऑडियंस के दरमियान में होता है, जब वो गिटार प्ले कर रहा होता है, तो आते हैं उसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं कि लास्ट नाइट तुम कहाँ थे, क्या तुम अकेले थे या एक मर्चेंट के साथ थे, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। और तुम सुबह से पहले क्यों निकल आए, क्या तुमने आने से पहले अपने साथी को देखा था कि नहीं, इस तरह के सर क्वेश्चन जब करते हैं। तो एक्सिनोव वाज सरप्राइज्ड एंड ही आस्क्ड, तो एक्सिनोव सरप्राइज हुए तो उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों क्वेश्चन, एक्सिनोव उनके क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करता है विदाउट गिविंग देम आंसर। कहता है कि आप लोग तुमसे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जैसे आई एम क्रिमिनल, इफ़ आई वर अ थीफ और रॉबर, वाई डू यू क्रॉस क्वेश्चनिंग मी इफ़ आई वर अ थीफ और रॉबर, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग ऑन माई बिजनेस एंड देयर इज़ नो नीड questions me. Then officials inform him that we are police officers and I questions you because whom merchant who had spent last night has been found with his throat cut. मीन्स वो जो मर्चेंट, वो जो इसके साथ लास्ट नाइट जिसके साथ इसने स्पेंड की है, वो सुबह के टाइम उसका गला कटा हुआ मिला है और उन्हें शक इस बात का है कि ये इसी एक्सिनोव का काम है। और 1 ऑफिसर सर्च हिज लगेज, और एक ऑफिसर आगे होकर तो उसका सामान की तलाशी लेता है और तो उसमें से एक ब्लडी नाइफ जो है वो बरामद करता है। ही वाज शॉक्ड, एक्सिनोव जो होता है वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है। व्हेन ही सॉ नाइफ ही सेड इट्स नॉट माइन, जब वो देखते हैं कहते हैं ये मेरा नहीं है। दे एक्यूज्ड हिम दैट ही हैव मर्डर्ड एंड स्टोलन दी मनी, वो उस पर वो कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम ही ने मर्डर किया और तुम ही ने पैसे चुराए। देन एक्सिनोव कहता है जस्ट मेरे पास 800 रबल्स हैं, 8000 रबल्स हैं। पुलिस काउट हिम एंड टुक ऑल गुड्स एंड मनीज, पुलिस उसको पकड़ लेती है और तमाम उसका जो है सामान ले लेती है और उसे पास ही जेल में भेज देती है। पुलिस इंक्वायर्ड है अबाउट हिम, पुलिस फिर उसके बारे में इंक्वायरी करती है उसके टाउन से, तो उसके टाउन के पीपल्स उसके करैक्टर के बारे में बताते हैं कि ये पहले ड्रग एडिक्ट, वो अल्कोहलिक था और फिर उसके बाद शादी के बाद ये एक गुड पर्सन बनेंगे। हिज वाइफ रिक्वेस्ट टू पुलिस ऑफिसर्स फॉर मीटिंग, अब उसकी वाइफ जो होती है उसे रिक्वेस्ट करती है पुलिस ऑफिसर से कि मुझे अपने खावन से मिलने दिया जाए। जब वो उसे इजाज़त देते हैं, एक्सिनोव जो उसे अपनी स्टोरी बताता है और बताता है कि ही इज़ इनोसेंट। देन शी सेड आई सेंट अ पटिशन टू द ज़ार, कहते हैं मैंने ज़ार को एक पटिशन सेंड तो किया बट उसने कबूल नहीं की ही। देन वो फिर उसे रिमाइंड करती है उसका नाइटमेयर, जब वो देखती है कि ये अपने ग्रे हेयर्स के साथ आया है। एंड शी टोल्ड हिम, ये से बताती है कि वाज इट नॉट यू हु डिड इट, ये उस पर डाउट करते क्या तुम वो नहीं थे जिसने ये हरकत की है। तो वो सरप्राइज़ होता है और वो अपने ही फेस के ऊपर, अपने हैंड्स के अंदर अपना फेस दे के ही बेगन्स टू वीप, he start weeping and he feels guilty on he feels ashamed, यानी कि कहता है कि मेरी वाइफ मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रही। एंड हाइड हिज फेस, सोल्जर्स केम देन टाइम, उस वक्त जो है सोल्जर्स आते हैं और उससे कहते हैं कि टाइम ओवर हो गया, आपके जाने का टाइम आ गया है। देन शी वेंट अवे, और आखिरी दफ़ा उसको लास्ट टाइम गुड बाय कहती है। एक्सिनोव सेज टू हिम इट सीम्स द ओनली गॉड कैन नो द ट्रूथ, कहता है खाली खुदा ही है जो उसे जानता है कि वो सच्चा आदमी है। इट इज़ टू हिम अलोन वी मस्ट अपील बट फ्रॉम हिम अलोन एक्सेप्ट मर्सीज। ही इज़ फ्लजेड एंड सेंट टू साइबेरिया टू वर्क इन द माइन, उसे साइबेरिया भेज दिया जाता है काम करने के लिए माइन के अंदर। वहाँ पे वो 26 ईयर्स स्पेंड करता है अपनी लाइफ का एक हिस्सा। एक ही लर्नस टू मेक बूट्स, सिंग्स इन द प्रिजन्स, शॉर्ट्स, रीड्स एंड प्रेयर्स, वो वहाँ पे दुआएं करता है और बूट मेकिंग करता है दुआ और सिंगिंग भी करता है। ही इज़ वेल लाइक्ड, और उसे वहाँ बहुत पसंद किया जाता है और उसके फेलोज जो हैं वो उसको इंडरमेंट्स ग्रैंड फादर कहते हैं और सेंट कहते हैं। ही इज़ नाउ एज जस्ट एंड ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी के तौर पर हम फेमस हो जाता है। अ क्रॉप ऑफ न्यू इनमेट्स, अब कैदियों की एक जो न्यू कैदी जो होते हैं वहाँ पे लाए जाते हैं साइबेरिया में। वहाँ पे अब एक आदमी आता है जिसका नाम होता है माखर।
टेल द स्टोरी ऑफ हाउ बोर्ड अब हाउस, वो उन्हें बताता है ओल्ड इनमेट्स को कि कैसे कि उसने एक हॉर्स को हॉर्स की वजह से हॉर्स की वजह से उस पर चार्जेस हुए हैं, वाज कंडक्टेड ऑफ स्टीलिंग, कि उसे स्टीलिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है। ही एडमिट दैट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम इन द पास्ट, वो ये एडमिट करते हैं कि उसने पास्ट में क्राइम किया था बट उसकी सज़ा नहीं मिली, that he should has gone to prisons for, but claims he is innocent of this new charge, लेकिन वो ये भी क्लेम करता है कि वो इस चार्ज के लिए बिल्कुल इनोसेंट है। एक्सिनोव आस्क आफ्टर हिज फैमिली एंड मार्कर टेल्स हिम, एक्सिनोव जो है आस्क उससे पूछता है अपनी फैमिली और के बारे में, मार्कर से बताता है कि वो तो अमीर हो चुके हैं। वो बातों में बताता है कि जब कि वो जो है मार्कर जो है वो व्लादिमीर में रहता है। जब व्हेन एक्सिनोव्स हियर इट ही आस्क आफ्टर हिज फैमिली अबाउट हिज फैमिली, वो उसकी फैमिली अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। मार्कर बताता है कि वो तो अमीर हो चुके हैं बट देयर फादर इज़ इन जेल एंड द अदर प्रिजन टेल्स मार्कर एक्सिनोव स्टोरी, और दूसरे जो प्रिजनर्स होते हैं वो मार्कर को एक्सिनोव्स की स्टोरी सुनाते हैं कि वो जो एक्सिनोव है वो इसी में और यही है वो एक्सिनोव। एक्सिनोव आस्क हिम इफ़ मार्कर नोज हु किल्ड द मर्चेंट, टू विच मार्कर रिप्लाइज, मार्कर से एक्सिनोव पूछता है कि कौन हो सकता है तुम्हारे ख्याल में उस मर्चेंट का मर्डरर, एंड देन ही रिप्लाइड ही इज़ नॉट अ थीफ टिल ही काउड एज ही सेइंग हाउ कुड एनी वन पुट अ नाइफ, कहता है कि वो कौन हो कैसे एक आदमी तुम्हारे बैग के अंदर वो ब्लडी नाइफ डाल सकता है जबकि वो तुम्हारे सर के नीचे था। इट वुड श्योरली हैड वोकन यू अप, ये भी था कि तुम जाग जाते। एक्सिनोव टेल हिम दिस टू मीन्स, एक्सिनोव को इन बातों से उसकी अंदाज़ा हो जाता है कि यही है मर्डरर जिसने मर्डर किया ही, क्योंकि बिकॉज वो इतने एक्यूरेटली उसे आंसर दे रहा था कि वो सबको पता चल गया कि ये मर्डर है। मार्कर इज़ अ रियल मर्डर ऑफ दिस मर्चेंट। वन नाइट, एक रात, एक्सिनोव कम अपॉन मार्कर डिगिंग अंडर द prison wall. Marker threatened him if he altered the guards. Aksinov replies that Marker killed him long ago and that he will let God guide his decisions. अब मैं यहाँ पे आ रही थी कि एक नाइट जब मार्कर जो है वो इस्केपिंग की तैयारी कर रहा था, वो एक ट्यूनिंग को डिग कर रहा था, वो एक होल डिग कर रहा था इन दैट विच ही कैन एस्केप, बट एक्सिनोव को ये बात पता चल जाती है जब मार्कर उसे डराता है कि अगर तुमने गार्ड्स को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और कहता है दी गार्ड्स एंड फाइनली गार्ड्स जो होते हैं वो ये ट्यूनल जो होता है डिस्कवर कर लेते हैं, और भी मार्कर के फरार होने से पहले, और जब गवर्नर्स जो होते हैं प्रिजनर से पूछते हैं बताओ कि किसने वो होल जो है वो डिग किया, तो कोई भी नहीं बताता। फिर वो एक्सिनोव की तरफ आते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम तो एक समझदार इंसान हो, तुम बताओ किसने ये, और तुम सच्चे इंसान हो, तुम बताओ किसने ये डिग किया है। तो मार्कर क्या कहता है, देन ही रिप्लाइज ही कॉन्ट टेल एज इफ इट इज़ नॉट अ गुड गॉड्स विल, कहते हैं कि मैं वो नहीं बताएगा क्योंकि ये खुदा नहीं चाहता, बेशक वो कहते हैं मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम चाहे मेरे से जो मर्ज़ी कर लो लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। मार्कर को जब ये देखता है तो वो सरप्राइज़ हो जाता है कि मैंने तो इसको 26 ईयर्स मेरी वजह से जेल में रहा है बट इसने फिर भी मुझे बचाया। मार्कर स्नीक्स इनटू हिज रूम वन नाइट, एक रात मार्कर उसके कमरे में आता है और उससे फिर माफ़ी तलब करता है, बताता है कि वही है जो मर्डरर है, रियल मर्डरर, कि उसी ने उस मर्चेंट का मर्डर किया था। ही एडमिट दैट ही किल्ड द अदर मर्चेंट एंड वाज अबाउट टू किल एक्सिनोव व्हेन ही हियर्ड अ नॉइस, कहते हैं कि जब वो उसका मर्डर कर रहा था तो उसने एक आवाज़ सुनी और उसने वो जो नाइफ़ था वो इसके बैग में छुपा दिया। ही सेज ही विल कन्फेस सो दैट एक्सिनोव मे बी रिलीज़, कहते हैं कि वो ये बात कन्फेस कर लेगा और मे बी यू कैन रिलीज़, कि तुम रिहा हो जाओ। एक्सिनोव तब उससे पूछता है कि अब मैं रिहा होकर कहाँ जाऊँगा, मेरी वाइफ जो है वो इस दुनिया में नहीं रही और मेरे बच्चे मुझे जानते भी नहीं अब। टॉर्मेंटेड मार्कर बिगन्स टू सोब, अब मार्कर जो है वो पछतावा है और वो भी रोना स्टार्ट कर देता है। एक्सिनोव जॉइंस इन एंड सेज, एक्सिनोव से कहता है कि खुदा तुम्हें माफ़ करे, मे बी आई एम 100 टाइम वर्स दैन यू, एंड देन वो ये वर्ड्स बोलता है कि मे भी हो सकता है मैं तुमसे 100 गुना बुरा हूँ। एट दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट पे एक्सिनोव लॉन्गिंग फॉर होम लीव हिम, और एक्सिनोव अपने घर के बारे में तमाम ख्यालात सोचता है। बाय द टाइम मार्कर जो होता है कन्फेस कर लेता है
और कि उसी ने वो गार्ड्स को बताया था कि उसी ने ये है क्राइम किया है। और उसके एक्सिनोव जो है, जब एक्सिनोव की रिहाई का टाइम आता है तो देखते हैं एक्सिनोव जो है वो मर चुका होता है। अब इसमें जो थीम आते हैं, इसमें थीम आता है फॉरगिवनेस का, फेथ का, कि फॉरगिवनेस जो माखर जो होता है वो अपने 26 ईयर्स लाइफ स्पेंड कर देता है उस मर्डर की वजह से, वेस्ट कर देता है, बट फिर भी ही हैव इनफ, उसके अंदर इतना हौसला होता है कि वो उसको माफ़ कर दे। उसके अंदर फेथ भी होता है। इसमें हमें फेथ और फॉरगिवनेस का थीम मिलता है। एक्सिनोव क्लिंग टू गॉड्स वाइल इन प्रिजन, और जेल में ही एक्सिनोव का खुदा पे यकीन पुख्ता होता है, और ही इज़ वन पर्सन हु नोज ऑफ हिज इनोसेंस, कहता है कि खुदा ही वो एक वाहद है जो उसकी मासूमियत जानता है। रिलेइंग दैट गॉड्स गाइड इन ऑल ऑफ हिज डिसीजंस, ही इज़ अल्टीमेटली लेड टू फॉरगिव हिज टॉर्मेंटर माखर, यानी कि वो माखर को भी माफ़ कर देते हैं। रिलीजिंग हिम फ्रॉम बर्डन दैट हिज लाइफ हैज़ बिकम, और वो in the late 1870s, after having completed War and Peace, Tolstoy went through a spiritual crisis and sorts, not for first time, but he gave his successful literary writing career. He began writing primer for schools and wrote a course, Elements of Literature, in which he included God sees the truth but waits. 1870s में जब वार ख़त्म हुई तो उसके बाद अमन को कायम करने के लिए, एक जहनी सुकून के लिए, कि गॉड तो सब कुछ जानता है, टॉल्स्टॉय ने बहुत राइटिंग पे काम किया और उसने इस नतीजे में ये एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करवाई राइटिंग की, और के गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। हमें इसमें मोरल लेसन ये मिलता है कि कुछ भी हो हमें खुदा पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।